मोहित भट्टाचार्य जी की बुक न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर 5 पार्ट 1 का अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और ब्यूरोक्रेसी क्या है। यहाँ पर इस चैप्टर में जो स्कॉलर्स हैं वो कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉबर्टो मिचेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैक्स वेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है चैप्टर में। आज के हम लेक्चर में केवल कार्ल मार्क्स और रॉबर्टो मिचेल्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे मैक्स वेबर को। सो मैक्स वेबर की जो कंस्ट्रक्ट है ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दैट इज द मोस्ट फिनोमिनल वर्क has been accepted all over the world, but apart from his there is also very good insights into bureaucracy from the point of view of other scholars. That is the focus point of this lecture. You all are welcome. Let's start. So now you see, bureaucratic theory, Mostyn Marx says, he tells about the origins from where the word came. So first it was used by French minister basically, and that was bureaucrate, right, in French. So it was the commerce in 18th century government in operation. That was the first sense of use of bureaucracy in modern times. And then this word itself went to Italy and Germany and many other places. And in Germany in 19th century it was pronounced as bureaucratie, and then subsequently to other European nations, and then it was kind of became lingua franca of all the bureaucracy and the government communication around the world. So the major contributions have come from Marx, Max Weber and Roberto Michel. So Marx over here is Karl Marx, and this is different from Mostyn Marx. He is Mostyn Marx. So the another scholar, but we are covering, he has just tried to tell us the origins from where it got used in the nomenclature, from where it came and it got used, and these are the three scholars, those are the focal point of our discussion. Now you see, Karl Marx was definitely a figure in history who divides the history in kind of in epochs. So Karl Marx, born in 1803 में डेथ हो गई है, और coming from aristocratic family, writing about the bourgeois and the proletariats and the have and have-nots. Communist Manifesto, Das Kapital, some of the most influential work he has done. Apart from that, he says that bureaucracy like स्टेट इटसेल्फ, स्टेट को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट है इन इटसेल्फ इज प्रॉब्लमेटिक, एंड ही सेज दैट द स्टेट, जैसे ब्यूरोक्रेसी स्टेट की तरह ही है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डोमिनेंट क्लास यूज करती है अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए अदर सोशल क्लासेस पे। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स, अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में इसको कंटेक्चुअलाइज करूं तो यूपीएससी के थ्रू जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स जाते हैं, वो यहाँ की जो डोमिनेंट क्लास है, डोमिनेंट क्लास का मतलब है यहाँ की या तो सोशल हायरार्की में, जिसे हम कह सकते हैं फॉरवर्ड कास्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी। फॉर एन एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑक्सफैम रिपोर्ट सेज 10% ऑफ द इंडियन ownership, 10% of the population, top population owns more than 60% of the wealth of this nation. So इस क्लास के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल यूज का कारण बन जाती है ब्यूरोक्रेसी, दैट इज, और फिर वो क्लास जो है 10% ऑफ द इंडियंस, बल्कि बचे हुए 90% के ऊपर अपना प्रभुत्व मीन्स डोमिनेंस स्टैब्लिश करते हैं, एंड दे यूज ब्यूरोक्रेसी एज इंस्ट्रूमेंट, एज आई एम यूजिंग दिस एज एन इंस्ट्रूमेंट टू टीच यू. So interest of bureaucracy is closely related to the dominant class in the state. So in itself, state is not something where Karl Marx is saying that it has to be seen above all, right? State in itself and the bureaucracy in itself becomes a class instrument, class serving institutions. So you see, that is a very different approach, and it is very scathing remarks that Karl Marx is giving on bureaucracy. Moving forward, so there is one scholar, Wright. He says that Marxists focus on the dynamics and contradictions of capital society.
एज सीन इन टोटल सिस्टम। एंड और बहुत कम ही इंटरेस्ट मार्क्सिस्ट लोगों ने दिया है ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिक्स के ऊपर। ज़्यादा जो एक क्लास जो अप्रोच है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहा है मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का, ये बात कही है, मार्क्स का भी यही ध्यान रहा है, और इंटरनल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे की तरफ कम ध्यान दिया है। सो एंड देन जब क्रिटिक डेवलप हो रहा था पॉलिटिकल इकोनॉमी का 19th सेंचुरी में, तो मार्क्स का जो ऑब्जर्वेशन था कंटेम्प्रेरी यूरोप के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आया, बट आया पर उन्होंने कभी भी एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अंदर जाके काम नहीं किया ऑन द ब्यूरोक्रेसी, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो इंटरेस्ट है अबाउट ब्यूरोक्रेसी, दैट हैज़ बीन स्प्रेड आउट इन मेनी ऑफ द things. For example, some letters, some monographs, some books, some articles here and there. So there is no particular theory construct by Marx particularly on bureaucracy. Having said that, in recent times there has been a lot of interest in writings of Karl Marx from the scholars of bureaucracy or public administration to see what his view were. And in that context जो public administration है वो कुछ दूसरे डिसिप्लिन से पीछे रह गया और वो इस राइटिंग्स को देर से ला पाया है। सो वो जो राइटिंग्स हैं इधर उधर बहुत बुक्स में, लेटर्स में, एडिटोरियल कमेंट्स में लिखी हुई हैं, उनको सिंथेसाइज करने का काम हुआ है और उससे एक व्यू बन के आया है। उस व्यू को हम देख रहे हैं जो कार्ल मार्क्स का व्यू है। इसी के साथ मुझे आपको बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि वी आर स्टार्टिंग ऑन 28 जून 2023 बैच विच इज विल बी फ्रॉम 1 PM 1 to 4 we regularly have classes, and batch would be batch 3 for 2024. It would have test series as well. हम पूरी 12 टेस्ट सीरीज देते हैं जिसमें 8 hours sectional and 4 hour full length with their whole of the discussion, and then we have in class live answer writing, discussions, doubt clearance. We have other sessions. For example, I also discuss some of the articles of EPW, Economic and Political Weekly, IIPA articles, newspaper, connecting the dots with the current affairs. This all we do. So use SC Live code, that is initial of my name Shekhar Chaudhary, and avail good discount. Apart from that, there is one more information that has to be passed to you. People who are writing their mains in this year would be writing, so they can use SC Live code with very good discount that you are getting the test series again for targeting 2023 this year, right? And that would be about 8 tests, 4 would be full length, 4 would be sectional. That would be followed with the discussions, and your all doubt would be cleared with answers also, sample answers. So do avail this opportunity. Again, till 11th of June it is available. You all are welcome. So here Marx points out कि ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है वो रिप्रेसिव कैरेक्टर हो जाता है, दमनकारी हो जाता है। वो सेंसरशिप करते हैं प्रेस की, और साथ में वो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि लेजिस्लेचर जैसे हमारा संसद है, राइट, उसका भी रोल को वो क्वेश्चन मार्क करते हैं कि दैट ट्राइज टू प्रमोट यूनिवर्सल लॉज, एंड इन द गार्ब ऑफ यूनिवर्सल लॉज दे आर मेकिंग लॉज विच आर सर्विंग पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है इंडियन कंटेक्स्ट में? जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में कई बार वी मस्ट हैव रेड, यू मस्ट हैव रेड दैट देयर इज अ काइंड ऑफ अ बायस इन द लॉज दैट some of the income tax benefits, some of the corporate tax benefits are passed on to the corporates, right? And they go into lakhs of crores, lakhs. So this is something that when we say Sansad is working for everybody, but it is actually working for a business class. This is one of the contextualization of what Marx has to say about bureaucracy in Indian context. Then censorship. Bureaucracy also use censorship. It means putting the lid over the eyes, not letting people speak, or for that matter, not letting people print or write openly and criticizing the government. So why does it use censorship? Because it has to defend some particular interest.
right? So that is bureaucratic instrument to maintain politics as a private and reserved sphere of the dominant domain of a particular class. It means let only some people who are powerful, who have social and cultural capital, would find their way into this class which is for rule, and all other people are somehow stopped coming into this ruling class. So there is also controverting Hegel's remarks. So Hegel is using another viewpoint when defining bureaucracy, and his viewpoint is pro-bureaucracy, that bureaucracy has insight and universal will and it wants to change the oppressive regime and want to bring equality. But Marx goes against, argues that bureaucracy does not know better, it does not know anything better. Why? Because bureaucracy में देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने इंडियन पुलिस का एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारा हायरार्की है, और हायरार्की में क्या है, केवल और केवल यहाँ पर कॉम्बिनेशन है और म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट है, एक दूसरे की बातों को सही कहलाने का एक क्या है, जबरदस्त तरीका है, और यहाँ पर क्या होता है, इनकॉम्पिटेंस बढ़ाता है ये। सो विद इन हायरार्की वहां पर इनकॉम्पिटेंस बढ़ती है, क्योंकि आगे उन्होंने डिफाइन किया है क्यों बढ़ती है, नीचे वाले को एग्जैक्ट बड़ी जनरल थ्योरी नहीं पता और ऊपर वाले को एग्जैक्ट केसेस नहीं पता होते हैं। सो यहां पर हायरार्की है और फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, मतलब एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, सो दूसरा व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है, अब इन दोनों के काम में जो इंटरप्ले है, जो इंटरफेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो नहीं पाता, कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता। सो दे वर्क इन साइलोज इन अ वे, एंड दिस ऑल थिंग्स विद हायरार्की ब्रिंग्स इन इनकॉम्पिटेंस। तो यहां पर अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी के क्रिटिसिज्म में भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, और वो खैर अभी हमारा दायरा नहीं है, बट कंटेक्चुअलाइज करने के लिए आई एम टेलिंग यू। सो अब देखिए यहां पर, सो वाई हायरार्की ब्रिंग्स इन इनकॉम्पिटेंस, यहां पर आप याद कर सकते हैं, ये है दरोगा मंगीराम एंड मूवी है गंगा जल। एक अगर सीन को देखे वहां पर तो इससे देखने को मिलता है कि सुपीरियर जो है अजय देवगन साहब को, ही इज वेरी न्यू, राइट, एंड बीइंग न्यू, बीइंग आईपीएस ऑफिसर, people who are higher in the rank could not see what is happening on the ground, particularization of case. No, they do not know. They know something that is journal, and the person who is on the ground knows the particular things but do not know the journal theory. So यहाँ पर क्या है, अंतर्द्वंद है, दोनों सर्विस को, दोनों सेवा को बहुत अलग ढंग से ले रहे हैं। सुपीरियर को पता नहीं है स्पेसिफिसिटी ऑफ केस, सबऑर्डिनेट को पता नहीं है जर्नल प्रिंसिपल्स क्या हैं, और टोटलिटी ऑफ द सिचुएशन दोनों को नहीं पता है, क्योंकि यहां पर क्या है, जैसे आई टोल्ड यू, देयर इज सो मच ऑफ हायरार्की। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स को अगर पर्टिकुलरिटी ऑफ केस पता है, वो यहां तक पहुंचने में द इंफॉर्मेशन हैज टू ब्रीच सो मेनी लेवल्स, and there we find that either information is not reached or there is lot of noise in the information. It means information got metamorphized, अलग हो गई है, यहां पर वो पहुंच नहीं पाती है। So ब्यूरोक्रेसी एज अ होल पर्टिकुलर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहती है, और अपने आप में जो एक सेंस ऑफ कॉलेजियलिटी है ब्यूरोक्रेसी में, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है एट द कॉस्ट ऑफ और जो बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं सोसाइटी में, फार्मर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, उनके कॉस्ट पे, और उन क्लासेस के कॉस्ट पे, गरीबों के कॉस्ट पे। ये अपने इंटरेस्ट या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के एक भाग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए विद इन ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। विद इन ब्यूरोक्रेसी अगर आप इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, सो विद इन ब्यूरोक्रेसी इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होती है उसको मैनिपुलेट करा जाता है, रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करा जाता है टू सर्व प्राइवेट एम्बिशन ऑफ इंडिविजुअल करियरिस्ट। इसका मतलब क्या है कि देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू हैव प्लम पोस्टिंग। अब जैसे भारतीय संदर्भ में, जैसे आप उत्तर प्रदेश को इमेजिन करिए, उत्तर प्रदेश अगर मैं रफ सा एक बहुत मैप बनाऊं, आउटलाइन बनाऊं, कुछ ऐसे करके एक स्टेट है, यहाँ पर सहारनपुर से लेके और आपका देवरिया, बलिया, और यहाँ पर झांसी, बुंदेलखंड, ये आगरा, मथुरा, और ये इलाका है नोएडा। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर लोगों का रहता है
मन की हमें ये पोस्टिंग जरूर मिल जाए गाजियाबाद नोएडा की, या हमें जो लखनऊ की पोस्टिंग जरूर मिले, या बड़े शहर जैसे यहाँ पर इलाहाबाद गोरखपुर बनारस हैं ये जरूर मिले, आगरा मिल जाए। और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो नेपाल बॉर्डर से बहुत सारे इलाके हैं, सिद्धार्थनगर है, इसके अलावा आपका लखीमपुर, और वहाँ बहुत बाढ़ आती है, वहाँ जाने से कतराते हैं, या पिछड़े इलाकों में जाने से कतराते हैं इसको। सो व्हाट आई बीइंग having worked in Uttar Pradesh bureaucracy, my reading is this is a reality of Uttar Pradesh. So यहाँ पर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनिपुलेट करा जाता है, रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करा जाता है। रिसोर्सेज का मतलब है कितना आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए, कितना आपके पास डिस्क्रिशन है यूजिंग ऑफ न्यू काइंड ऑफ व्हीकल्स, न्यू काइंड ऑफ वेपन्स या न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब का। क्यों? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल ब्यूरोक्रेट्स, करियरिस्ट लोग ये चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर या उनको वो पावर के पास रहें। सो ऐसे राइवल ब्यूरोक्रेटिक क्लिक्स बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में रहते हैं, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी पर्टिकुलराइजेशन है, पर्टिकुलराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये देखिए सिविल सोसाइटी है क्या, सिविल सोसाइटी इज अ अम्ब्रेला टर्म विच इज डेफिनेटली आउट ऑफ द स्फेयर ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पर एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, ये सब उसके अंदर आते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि धीरे धीरे सिंबलाइज पर्टिकुलराइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी या प्राइवेटाइजेशन। सो ब्यूरोक्रेसी में वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट बना लेते हैं, सिविल सोसाइटी के भी मेंबर, जो कि पूरे सिविल सोसाइटी में एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी तो में तो मजदूर का किसान भी हो सकते हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा भी हो सकता है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हो सकता है। तो वहां भी हमें ये देखने को मिलता है, वहां भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ के पीपल को प्रमोट करने के लिए उसको ओवर पावर कर लेते हैं। और ऐसी ब्यूरोक्रेसी भी सिंबलाइज करती है इसी का। और ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिलके क्या करती है, एक तरीके से व्हील डाल देती है सामान्य लोगों की आंखों के सामने, एंड दे वर्क इन टेंडम टू सेव द पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ द सेक्शंस। नाउ ब्यूरोक्रेसी एज मार्क्स सॉ इन द फ्यूडल कैपिटलिस्ट प्रूशियन सिचुएशन, मतलब जर्मनी में जहां पर फ्यूडलिज्म, पुरानी जर्मनी में जहां पर फ्यूडलिज्म अभी भी है, जर्मनी के एक एरिया में सोशल सोसाइटी डोमिनेटेड बाय स्टेट, और उसकी क्या है, सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है, और इसको इंडियन कंटेक्स्ट में अगर मैं कॉन्टेक्सुअलाइज करूं आपको, तो मैं बताना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी जैसे प्रूसियन स्टेट में ऐसा था कि अपने को अलग रखती है सोसाइटी की मेन विचारधारा से, मेन स्ट्रीम से। एक इलीट सेक्शन बनाए रखना चाहती है, सेपरेट कर सकती है कंटेंट से। इसका मतलब जो कि लोगों की समस्याएं हैं, वो समस्याएं ब्यूरोक्रेसी इज नॉट पेइंग अटेंशन, रादर दे आर लिविंग इन सम अदर ग्रैंडियोज आइडिया इन आइवरी टावर, एंड देयर इज अ डिस्कनेक्ट, राइट, यहां पर। और इट अज्यूम्स फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म है कि एक लिटरेचर में भी फॉर्मलिज्म वर्ड यूज होता है, जिसका मतलब है कि आप केवल जो लिटरेचर में लिखा है उसको देख रहे हैं, पर उसके आसपास जो चीज है उसकी इकोलॉजी में उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेचर देख रहे हैं। यू आर नॉट कनेक्टिंग विद पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स अराउंड इट, राइट। सो दैट इज फॉर्मलिज्म, और सच प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ सुपीरियर कॉन्शियसनेस एज द विल ऑफ द स्टेट। सो ब्यूरोक्रेसी व्हाट इट डज, वो अपने को अलग कर लेती है कंटेक्चुअल एस्पेक्ट से, साथ में इट प्रोजेक्ट इटसेल्फ दैट व्हाटएवर द विल ऑफ द स्टेट इट, इफ इट इज अ अग्रीमेंट बिटवीन a lot of people, common people and the state, that the state would favor them or would be guardian. बट यहां पर उस स्टेट का क्या कहना है, नहीं कहना है, ये ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ में लेती है और कहती है वी आर द टॉर्च बेयरर, वी आर द फ्लैग बेयरर ऑफ द स्टेट। और रादर ब्यूरोक्रेसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को उसमें क्या करती है, प्रमोट करना चाहती है। सो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ले क्लेम टू यूनिवर्सैलिटी, मतलब सबका भला होगा, पर वो भला केवल कहने के लिए है, बट सबका भला किसका हो रहा है, जो 10% या 1% ऑफ द सोसाइटी, एंड ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग दैट, इट इज बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। जनरल इंटरेस्ट पीछे रह जाते हैं टू द स्टेटस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट ऑफ बिग फार्मर्स, इंटरेस्ट ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज ग्रुप, all these people find their interest to be fulfilled, but common people, common man is left behind lot. So you see this is a contrast in between high rise buildings and Dharavi slums, you must be knowing, in Mumbai.
So the bureaucracy on the claim that they are working from the universal problems, they are actually working for the problems of this class. That is why you see these are rising high and high, and these people are behind in the curve of development, in the curve of living a decent life. That is what a contextualization of what bureaucracy is from the point of view of Marx into Indian context. Now you see, Marx also says about the examination, and it is so funny to read because we all are preparing for the UPSC exam, and there was prelims just now, and you can see you must be having these kind of experiences, standing in the line and writing the exams, right? So let us see what he has to say. So examination क्या है? केवल और formality. Examination तो formality है, क्योंकि जिस वर्क को ब्यूरोक्रेसी में लेना है स्टेट को, वो ब्यूरोक्रेसी पहले ही डिसाइड कर सकती है और कर देती है, और उनके फेवरेबल यू कैन से इसका क्रिटिसिज्म भी हो चुका है. लाइक फॉर एन एग्जांपल 2011-12 में जब CSET आया, एंड इट वाज काउंटेड एज अ नॉट जस्ट एज अ क्वालिफाइंग पेपर बट ऑल्सो मेरिट पेपर. वहां पर देयर वाज दिस controversy and criticism from the many Hindi heartland people also and otherwise also, that कि ये करा ही इसलिए गया है कि इंग्लिश मीडियम वाले लोग आ सकें और उस स्ट्रेटा से लोग आ सकें जहां पर कॉमन मैन जो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़े हैं वो ना जा सकें. इस कॉन्टेक्स्ट को देखिए जरा, जी कह रहा है कि एग्जामिनेशन लेना तो केवल फॉर्मेलिटी है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव बॉन्ड नहीं है इंडिविजुअल और स्टेट में. दे डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी ऑब्जेक्टिव बॉन्ड इंडिविजुअल का स्टेट के साथ. सो स्टेट क्या चाहती है और इंडिविजुअल क्या चाहता है, इसके बीच में कोई जगह नहीं है, ये तो केवल फॉर्मेलिटी है. सो यहां पर जो आप एग्जाम लेके लोग आते भी हैं उनके बारे में भी कहा गया है डुअल नॉलेज चाहिए होती है, एक सिविल सोसाइटी के लिए और एक स्टेट के लिए. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यू have to act differently when you are among the civil society sitting and delivering speech, तो ज्ञान और बड़ी बड़ी बातें करना. but when you are working in the bureaucracy, you say to hell with it, I do not want to contribute to governance or whatever. मेरा उद्देश्य है इतनी मेहनत करके आया हूं पैसा कमाना. and why I am saying that? because it is being reflected. You see toppers of UPSC exam are being caught in the bribe. What happens? The thing that metamorphized or change in them is because they become a part of bureaucracy, and nobody can escape this, right? It is a big web. Once you go into it, you are either cog in the machine, impersonalization hai, ya you dance on the tunes. Now that has to be read with subjective view, because not everybody is doing corruption, but yes. एग्जामिनेशन क्या है? मियरली अ बैप्टिज्म है इनटू ब्यूरोक्रेटिक नॉलेज. सो एग्जामिनेशन तो एक तरीका है कि आओ एक नए धर्म में शामिल हो जाओ. बैप्टाइजेशन जो आपको पता होगा, क्रिश्चियनिटी में जब हम एक तरीके से, या सिखिज्म में भी अमृत चखना. सो व्हेन यू आर कमिंग इनटू रियल रिलीजन, सो वो है प्रीस्ट के द्वारा किया जाता है. ऐसे ही एग्जामिनेशन के द्वारा उस क्लास के लोगों को चुन के बैप्टाइजेशन कर दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी की नॉलेज में. ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस, ब्यूरोक्रेट कैन नॉट बी अ रैशनल एक्टर. रैशनल क्यों नहीं हो सकता है? यहां पर देखिए, रैशनैलिटी किस पे डिपेंड करती है? तर्क पे, यूज पे, रीजन के यूज पे, और साथ में नॉलेज पे. सो इट इज नॉलेज एंड रीजन, रैशनैलिटी, राइट? सो यू सी नॉलेज, एज वी गो इनटू द हायरार्की अपर एंड अपर, इट इज हायरार्की ऑफ नॉलेज. So this person is more knowledgeable as compared to this person, and hierarchy is all about who has more knowledge. That is how IAS, IPS officers or SDMs are promoted. You see somebody go as an IAS officer, he or she becomes SDM for some amount of time, then they become CDO, then they become DM and divisional commissioner, and they go to secretary, and then whole process of under secretary, deputy secretary, joint additional secretary, and secretary, right? So you see that this whole, in terms of competence, bureaucrat cannot be a rational actor. Why? Because hierarchy of structure means hierarchy of knowledge, right? So यहां पर जो व्यक्ति है वो अपने आप में पूरी तरह नॉलेज को यूज नहीं कर पाता है, बिकॉज इसके पास ज्यादा नॉलेज है,
he has more knowledge, so he has to adhere with his knowledge, but he may not have total knowledge of the working at this level. So comprehensive knowledge is not possible in a situation. नॉलेज को डेलिबरेटली स्प्लिट ओवर किया गया है. सो यहां पर देख लीजिए आप, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डीएम, और इसके भी नीचे एसडीएम्स, राइट. सो ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये नॉलेज क्या हो गई है, क्योंकि हायरार्की इज ऑल अबाउट हायरार्की ऑफ नॉलेज. नॉलेज स्प्लिट हो गई है, नॉलेज स्प्लिट हो गई है, किसी को पूरी सिचुएशन का पता नहीं है, इसलिए ब्यूरोक्रेट क्या पूरा रैशनल हो सकता है, नहीं हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो, यू डू नॉट इवन इफ यू हैव रेड समथिंग, बट यू डू नॉट नो इन टोटलिटी व्हाट वर द डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशन व्हेन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी वाज बीइंग डिजाइन्ड, राइट, प्लानिंग उसमें. सो यू आर मोर ऑफ अ लाइन फंक्शन रादर देन स्टाफ फंक्शन एट दैट टाइम. यू डोंट नो व्हाट आर द इंट्रिकेसीज ऑफ डिस्कशन and what the policy makers actually want to have. So there is a lag in this context, you can understand that. So रियलिटी को भी दो टर्म में समझा जाता है, एक तो प्रैक्टिकल में और एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर में. प्रैक्टिकल में कोई भी आदेश ऊपर से आ जाता है, सो आप ब्यूरोक्रेटिक नेचर में ये समझते हैं कि हाँ वो आदेश आया, यू हैव टू फॉलो इट. पर एक प्रैक्टिकलिटी है कि कितना हो सकता है, वो कितना संभव है. सो ऐसे ही रियलिटी को दो संदर्भ में देखा जाता है कि मेरा बॉस ना नाराज हो जाए और ठीक है जो मेरा काम है वो भी हो जाए, बट दो संदर्भ में. विद इन द ब्यूरोक्रेसी हाउ थिंग्स वुड बी व्यूड, पावर स्ट्रक्चर, करप्शन, ब्राइबरी, सब कंटेक्स्ट में. और ये एक तरीके से सीक्रेट नॉलेज बन के रह जाती है. सो सीक्रेट नॉलेज कैसे, अभी बताता हूं आपको. सो एक आप देखेंगे, let us discuss this point first. So real beings are treated according to bureaucratic perception and image world of the bureaucracy. So real beings mean जो लोग होते हैं, they are treated according to bureaucratic knowledge. What does it means? It means if people are powerful, they have lot of connections, social capital, they would be treated in a good way. So every officer would, उनका काम जल्दी हो जाएगा, officer would do their work. For an example, let me give you some example. कोई MP MLA है, उसका रिलेटेड काम है लैंड के म्यूटेशन का. म्यूटेशन मतलब नाम बदलना, जो कि रेवेन्यू का डिपार्टमेंट का ये काम है. आप जब जाएंगे ऑफिसर बनेंगे, you'll see. Now if that application is coming from MP MLA or some big person, that is solved in a time less than that is even declared in the papers. But if you are किसान मजदूर, वहां पर आपको ट्रीट किया जाएगा जो ब्यूरोक्रेटिक परसेप्शन है. ब्यूरोक्रेटिक परसेप्शन कैसे बनता है, कौन कितना पावरफुल है. नॉट एवरीबडी इज इक्वल इन ब्यूरोक्रेटिक आई. कौन कितना पावरफुल है, कौन मेरा ट्रांसफर करा सकता है, मेरे पे सैंक्शन लगवा सकता है, उसका काम जल्दी हो जाए, ये है. और ब्यूरोक्रेसी जो सीक्रेट नॉलेज वाली मैंने बात करी है, नॉलेज को सीक्रेसी में रखती है और कॉम्पिटेंस को मिस्ट्री में रखती है. वो ऐसा क्यों करती है, बिकॉज नॉलेज को अगर सीक्रेट नहीं रखेंगे देन देयर वुड बी एक आर्गुमेंट जो हम पहले पढ़े थे, देयर वुड बी नो सेपरेशन फ्रॉम द कॉमन पीपल. And bureaucracy itself projects as a body, as an individual body body of individual which want to separate itself from others, because bureaucrats do not want to have a look that they are common people, right? And competence को mystery रखते हैं ताकि कोई और उनका काम कर ही ना पाए. केवल ब्यूरोक्रेसी ही अपने आप में ब्यूरोक्रेट का काम कर सकती है. नॉलेज को सीक्रेट रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बिकॉज द मोमेंट द नॉलेज वुड गो इनटू सिविल सोसाइटी, इनटू द वर्कर्स, किसान, वो आके फिर चढ़ जाएंगे का मतलब है हल्ला मचाएंगे. तहसील दिवस में हल्ला मचाएंगे, आपने हमारा काम क्यों नहीं किया. थाना दिवस में हल्ला मचाएंगे. ब्यूरोक्रेसी डज नॉट वांट टू डू दैट. इसका एक और उदाहरण है, नॉट फ्रॉम दिस बुक बट अनदर बुक इन द राइटिंग्स ऑफ प्रताप भानु मेहता, एंड दैट इज सो रिलेटेबल, हैविंग वर्कड माई सेल्फ, दैट आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी अपने को क्यों अलग करना चाहती है. तो मेनी अ टाइम्स, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय, कैंप कार्यालय. सो प्रताप भानु मेहताज वन बुक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सेज कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी उसने क्या किया था, रोडों से, हमेशा रोड से जो एक्सेस होता था टू द कार्यालय और द हाउस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम्स, वो हमेशा कर्व बना के होता था ताकि बाहर की जनता क्या हो रहा है इसको देख ही ना पाए. इमेजिन दिस इज नेशनल हाईवे. सो दिस इज आई हैव बिल्ड अ model of district magistrate camp karyalay in Muradabad. So this is New Delhi and Muradabad road. Such is the office.
ऑल प्लेसेस, जो पुराने आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर हैं, आप जाके देखिएगा, वहां पर आपको ऐसा ही मिलेगा। बिकॉज नॉलेज को सीक्रेसी बनना है, कॉम्पिटेंस को मिस्ट्री बनाए रखना है, तो एक डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। तो ये क्रिटिसिज्म है ही, जहां पर हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्फ, और फॉर दैट मैटर इवन द स्टेट प्रोजेक्ट्स ब्यूरोक्रेसी एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज टू ब्रिंग द डेवलपमेंट, बट दैट इज नॉट द टोटल पिक्चर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सो यहां पर देखिए, एक आपको हायरार्की देखने को मिल रही है, इसके बारे में मार्क्स ने जिक्र किया है। साथ में ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, सब्सटेंस ऑफ द स्टेट ले लेती है। सब्सटेंस ऑफ द स्टेट का मतलब है जो उसके पास लेजिटिमेसी है उसको अपने हाथों में ले लेती है, और फिर लोगों को बताती है दैट वी आर द पीपल हु विल हेल्प यू। सो एंड स्टैंड्स इन बिटवीन स्टेट एंड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता का ओपिनियन है, स्टेट के खिलाफ या स्टेट के प्रो। वहां पर ब्यूरोक्रेसी आके एक परमिएबल छन्नी जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एक व्हील का काम करती है, और वो वहां पर देखती है, और उसके पास पावर बहुत है। इसका मतलब पब्लिक ओपिनियन अगर जनता जनार्दन ये है और स्टेट ये है, तो यहां ब्यूरोक्रेसी इंटरप्ले करती है। सो पब्लिक ओपिनियन टू प्रिवेंट प्रोफेनेशन ऑफ द स्टेट, मतलब ब्लास्फेमी को रोकने के लिए, कि अगर ये जनता कह रही है अरे ये सरकार ने कुछ नहीं किया, ये राज्य बहुत ही खराब है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ moist are saying, then bureaucracy come in between and prevent state from withering away, because if state become weakened, then bureaucracy के self interest तो खत्म हो जाएंगे, right, of the state, the crown of the bureaucratic pyramid। सो ये है, स्टेट नहीं रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी कैसे रहेगी? तो वो क्या करती है, प्रोफेनेशन बचाती है, ब्लास्फेमी बचाती है, विदरिंग अवे बचाती है स्टेट की। ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी अपने आप में वर्शिप ऑफ अथॉरिटी है। इसका मतलब है कि वॉट एवर योर बॉस इज सेइंग ऑलवेज राइट, एंड इफ यू हैव अ डाउट प्लीज रेफर टू द फर्स्ट रूल, राइट। सो ये हम जोक्स में बोलते हैं, पर दैट इज रियलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वॉट एवर सीनियर हैज सेड यू हैव टू फॉलो। ओनली बॉन्ड बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक माइंड इज ओबीडियंस एंड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द हायरार्की। अब यहां पर देखिए, इस व्यक्ति ने ऐसे झुकाव किया, ही इज ऑल्सो बेंडिंग लाइक हिम, राइट। सो बिकॉज दैट इज ऑल मार्क्स सेइंग, ओनली लेवल ऑफ कनेक्शन दैट द हायरार्की upper and lower and middle people are having absolute blinded conformity with conformity with the people of higher rank. That is what he is trying to say. Obedience of hierarchy, blind obedience of hierarchy. So now let us, so this we completed about Marx. So it is a very scathing remarks. Definitely people who want to go into bureaucracy must be thinking ये तो बहुत बुरा कह दिया, but that is have to be seen from the perspective of from the bureaucracy that Marx was seeing. Bureaucracy has also been given all praises and showering of love when it has changed people, Indian working and Indian society. There has been a lot of positive also, so we'll also discuss about it, so don't get disheartened. So Roberto Michels. So now another person, he views bureaucracy also in the context of political parties and also in the context of private sector. So one thing that has to be cleared in mind, that bureaucracy is a type of organization. It is not only government servants. Even private sector organization has bureaucracy. So wherever, when we will study in the next lecture, Max Weber, he has done a better construct theoretical model of bureaucracy. Whenever there is hierarchy, there is communication on papers, there is sphere of competence, means speciality, and there is defined laws. That working in itself becomes bureaucratic, be it a school, university, hospital, or a DM karyalaya or a karyalaya of electricians, JE or AE, right, junior engineer, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से कोई भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो म्युनिसिपैलिटी का या पंचायत भवन हो, एवरीवेयर. सो नाउ ही हैज टू से समथिंग. सो इन्होंने अपना जो फोकस किया वो इंटरनल पॉलिटिक्स पे किया. क्या होता है लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन? लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मींस एनी ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ मॉल आल्सो, इट कुड बी अ
decathlon ka mall, right? Big, you have seen that. He drew attention to striking phenomena of elite domination in organization. So within organization also there is this tendency that elite people who have better social contacts, cultural capital, they tend to dominate, and there is a inter competition within the hierarchy over there also, in private sector, in political parties, everywhere. उन्होंने जर्मन सोशलिस्ट पार्टी को देखा और देखा वहां ओलिगार्किक हो गए है वो. ओलिगार्की मीन्स सम पीपल आर रूलिंग, रूल ऑफ सम पीपल, ओलिगार्की. पावर वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर ये पावर सर्किल है, आप देख लीजिए भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, you will see some people at the top, they are making all the decision whether somebody would be chief minister in X or Y state. they call the shots. कौन हटेगा, they call the shots. किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, they call the shots, right? and किसको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, they call the shots. So same, so it becomes oligarchy. Some people are very close to the power circle, they also become a part of the coterie, a cabal, राइट और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है विद इन द पार्टी हायरार्की ऑल्सो, जो पावर है. रॉबर्टो मिचेल्स. सो ऑल बिग ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ ही जाते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब आ जाते हैं तो इसी वजह से हम रूल आउट करना देना चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आने से देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पीपल टू कैप्चर पावर. इसीलिए ऑल बिग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो, फॉर एन एग्जांपल चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, दे विल हैव दिस थिंग दैट ओलिगार्की विद इन इट ऑल्सो. वहां पर ग्रुप डायनेमिक्स आ जाएगी और कुछ लोग क्या होते हैं, कब्जा कर लेंगे. लाइट और इनकी मिचेल्स की राइटिंग ने हैव थ्रोन लाइट ऑन द डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी के कॉन्फ्लिक्ट पे भी, दैट वेर एवर देर इज डेमोक्रेसी, wherever there is bureaucracy, democracy cannot survive, because there is tendency that any big organization with bureaucratic structure, there cannot be internal democracy. As I have given you example of political parties, also private enterprise in India. इंडिया के संदर्भ में मैंने आपको बताना चाहा. तो यहां पर देखते हैं, यहां पर जो ये बात कह रहे हैं देखते हैं. तो बिहार आईपीएस ऑफिसर accused डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ अब्यूजिंग हिम सर्व्ड शोकेस नोटिस. सो इन्होंने बताया कि डीजीपी साहब ने इन्हें ही अब्यूज कर दिया है, इनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है. अपने ट्विटर लाइन पे भी इन्होंने शेयर किया. ये इंसिडेंट बहुत पुराना इंसिडेंट नहीं है, फरवरी 2023 का है, राइट. सो एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ब्यूरोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर, इंटरनल डायनेमिक्स उसमें कुछ होता नहीं है. इट इज ऑलवेज यू हैव टू अडहर टू द रूल ऑफ द सीनियर, ब्लाइंड ओबीडियंस टू वॉट एवर द ऑर्डर्स आर कमिंग. So that is all we have in this lecture. I hope you must have liked it, and you can connect to me over Public Ad by Shekhar. Public Ad by Shekhar. These are the Telegram and the Instagram channels that I have, and on this channel we discuss a lot. You can always send any of your query, any of the thing that you do not understand. Also we discuss about current affairs, answer writing, some of the material that is shared. So do connect on this note. That is all I have for you. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.